Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to do some questions. तो basically हम लोगों ने फ्लूइड में जो कुछ भी पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बायो एंड फोर्सेस, इन सब का जो भी हमें नॉलेज लिया है अभी तक, उसे हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आज क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है और ये जो लेक्चर हैं वो आज आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है. हो सकता है कुछ और नई बातें, नए फैक्ट्स आपको पता चले, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दीज इन योर नोटबुक्स, राइट? This topic, the fluid topic actually, is totally important for your school examination as well as for the Olympiad. So basically, if you are like studying for the school examination, then this lecture is for you. You can definitely do all the questions, try them out. If you are not able to solve them, at least listen to it, right? And try it for yourself. ठीक है, इसी तरीके से आप ओलंपियाड में भी इन क्वेश्चंस को आप फेस आउट कर सकते हैं. आप इनको जो है ये कंसेप्ट, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट आपको किसी एक सिचुएशन में आपको अप्लाई करने के लिए हो सकता है. दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हो, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, राइट? इसीलिए हम लोग भी एक पूरा लेक्चर क्वेश्चंस को डिपेंड जो है डेडिकेट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. That is the main thing we need to understand, right? So we are going to face today some questions, all right? So get ready about that. We have already revised the whole chapter and we are going to do that, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write this code TTB009 in the search box of the Telegram app. Then the drop down list में हमारा जो क्लास 9th का चैनल है वो अपेयर हो जाएगा. You can join that and access all the DPPs and study material along with the notifications of the videos, right? That would be cool. Now see, this is the team which is going to help you a lot, because this team is actually doing very much hard work for you all, and we are dedicating so much amount of time for you all, and we are providing these video lectures free for you, right? तो बेसिकली कोई भी बच्चा जो ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए कोशिश कर रहा है, या फिर वो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहा है, या फिर सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, so if you are watching these lectures, then you should definitely watch till the end, learn from these video lectures and also share these video lectures to everyone. So कोई भी बच्चा जो कि unable है क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड करने में, तो he or she may watch these video lectures and gain बहुत सारी knowledge that will be the quality education from Kota, and that will be so much helpful for them, right? So you need to do your part. You need to share these video lectures to everyone of your friends, right? That is the most important thing you can do. Now, in accordance to the thing that we are going to do today, in accordance to these video lectures which we are providing to you, and for that also we are providing you some packages, right? That is for every class. And to access those packages, you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website, you are going to get 2 type of packages for every class. So basically these 2 type of packages are the most important thing, because full package and the test series are the main things which can definitely take you ahead in your career, right? That is the main thing. If you are the one who is like not able to get the proper guidance about the Olympiads for your school examination, you're not going to get right ki kaun sa study material is the good one, and how you can definitely going to achieve all the targets you have set for yourself. So if you are the one who is in confusion with that, you can join our full package. And full package ke andar you will be getting the comprehensive study material. So you're going to study that, and then you will be watching the video lectures provided to you, right? And then you will be like doing the homework with जो भी हमको आपको होमवर्क देते हैं वो आपको करना होगा. बाई वीकली क्विजेज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. तो ये टेस्टिंग पार्ट पे आ जाता है बाई वीकली क्विजिंग. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे, लेक्चर देखेंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे. दैट वुड बी सो मच नाइस, राइट? फिर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हम लोगों ने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि हम आपको ये बता सके कि आप जिस भी एग्जाम को देने का सोच रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है, हाउ यू आर गोइंग टू फेस दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज उसका प्रॉपर पैटर्न एंड इवन कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में आपको सॉल्व करने हैं, ऑल द टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइक आपको एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, वो बहुत मैटर करती है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दीज periodic test papers in the full package, right? So that is the main thing. टेस्टिंग पार्ट, स्टडिंग पार्ट, होमवर्क पार्ट, वीडियो पार्ट, ये ऑल सारी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बच्चे की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू
through the packages, right? And even if you are the one like जिसको studying बहुत अच्छा लगता है, उसके पास पूरा knowledge है, but he is unable to test himself. So basically, if you are the one which is for the testing part, then you can join our test series. You will be getting the periodic test papers, recorded live classes, bi-weekly quizzes. All right, so you will be going to get all these 3 things. All right, so basically these are the most important thing. Now, if you are ready to buy them or if you want to buy them, then you can definitely write my code CYLive so that you will be getting a 30% discount, right? And if you're the one who want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. All right, so you can call us and all your queries will be resolved over there. Make sure that you do that. All right. Now it is the promise time. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the most important thing you can do, right? Revision is the key. Make sure कि आप जो भी टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से करें, ताकि जब आप 10th स्टैंडर्ड में ओलंपियाड्स की तैयारी करेंगे और आप स्कूल एग्जामिनेशन को देंगे तो आपके ये कंसेप्ट पहले से क्लियर हो, इनको बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े, राइट? एंड क्लियर कैसे होंगे? बाय रिवीजन. सो यू नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर. अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपने रिवीजन का टाइम 1 to 2 hours कर देना चाहिए, right? So basically this is the time you need to increase your revision timing. All right, make sure you make a schedule for that and let's get started for the questions. All right, so this is the lecture 6 chapter 5 fluid and we are going to solve all the questions here. So this is the first question in front of you all. Make sure that you do start it now. ठीक है, आप इनको ट्राई करो, नहीं आता है तो भी खुद से ट्राई करना है आपको. ऑलराइट, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए वट एवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें क्लियर आउट हो जानी चाहिए एक बार में पढ़ के कि भाई जो जो चीजें हमें गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, इन सभी का हमको पता होना चाहिए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन की हुई है. A diver is 20 meter below the water surface. This is the situation here. ठीक है, तो let's say this is the water surface. ठीक है, ये है water surface. और ये जो डाइवर है, let's say it is somewhere here. ठीक है, डाइवर यहां पर है और इस डाइवर की जो डिस्टेंस है और यू कैन से हाइट है वाटर सरफेस से, वो कितनी है? 20 meter. So this is the height of the water above the diver, right? डाइवर के ऊपर जितना हाइट का वाटर फिल्ड है वो 20 मीटर है. ठीक है, ये आपको गिवन किया गया है. गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg per meter cube. What is the pressure exerted by the water on the diver? So tell me, जो प्रेशर exerted होगा, ठीक है, on the diver, वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? बाय द हाइट, जितना सरफेस से नीचे होता है, बिकॉज डाइवर जितना सरफेस से नीचे होगा उसके अबव वाला पानी जो है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा, राइट? सो यहां पर आपको ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दे दिया गया है, दैट इज 1000 kg per meter cube. उसके अलावा आपको जी का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको हाइट दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर. सो डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला जो फर्स्ट डेरिवेशन हमने किया था हमारे चैप्टर में, और उसमें हमने क्या बोला था? लिक्विड कॉलम के थ्रू बेस पर कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, इसे हमने कैलकुलेट किया था, राइट? अब देखिए डाइवर के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो इसी लिक्विड कॉलम के वजह से लगने वाला है. सो बेसिकली इफ वी आर एबल टू गेट दिस मच ऑफ प्रेशर ऑन दिस लेवल बाय दिस कॉलम ऑफ द वाटर, वी आर गोइंग टू गेट द प्रेशर ऑन द diver, right? So pressure would be how much? Rho GH. This is the formula that we have derived over there. Rho is the density of the liquid. तो ये रहा हमारी डेंसिटी 1000. और सबसे पहले चीज आपको क्या देख लेना है, क्वेश्चन जब आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सभी की सभी किस में है? SI यूनिट्स में हो, राइट? तो अभी ये सभी SI यूनिट्स में है, सो देयर इज नो बिग डील. यू जस्ट नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड सॉल्व इट. रो का वैल्यू है 1000, जी का वैल्यू है 10
और h का वैल्यू है 20, सो इट वुड बी लाइक सो मच इजी, राइट? सो इट वुड बी 2 lakh पास्कल, राइट? इट कैन बी पास्कल, इट कैन बी जो भी प्रेशर का यूनिट रहता है, राइट? तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 lakh पास्कल्स, ठीक है? तो इस तरीके से सिंपल, हमें यहाँ पे सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि जब हम कभी भी हम डाइवर पे लगा रहे हैं प्रेशर या फिर उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई उस पर कितना प्रेशर है, सो हम क्या देखने वाले हैं कि उस डाइवर के ऊपर कितना लिक्विड कॉलम है। अगर हमें उसके ऊपर का लिक्विड का हाइट पता चल जाए, लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाए, तो वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑन दिस डाइवर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, ठीक है? तो यहां पर आप लोग उस डाइवर पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नोट दिस डाउन, हमारा सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है? ये हम लोग रीड आउट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। अ लिक्विड exerts a pressure of 100,999 pascal on an object when it is 73.5 centimeter below the liquid surface. What is the density of the liquid? So देखिए एक लिक्विड क्या कर रही है एक ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से दिस इज द लेवल ऑफ द लिक्विड, ठीक है? और जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द लिक्विड सरफेस। इस लिक्विड और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो हाइट है, लिक्विड का सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो हाइट है दैट इज 73.5 सेंटीमीटर। तो इट इज 73.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर आपको गिवन है वो दिया हुआ है बिलो द लिक्विड सरफेस। तो इस लिक्विड सरफेस के 73.5 सेंटीमीटर बिलो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? प्रेशर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है? 100,999 पास्कल, ठीक है? इतना प्रेशर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है जो कि 73.5 सेंटीमीटर नीचे है। सो द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ऑब्जेक्ट इज, हाइट कितनी हो जाएगी? 73.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें और क्या चीज गिवन किया हुआ है? जी का वैल्यू, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप यहां पर देखिए, आपको निकालनी है डेंसिटी, राइट? डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड है। तो यहां पर अगर आप वही फॉर्मूला रो जी एच फॉर्मूला यूज करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको प्रेशर पता है, जी पता है, एच पता है, ठीक है? तो आप जो है रो का वैल्यू यहां से इजीली कैलकुलेट कर लोगे, प्रेशर डिवाइडेड बाय जी एच। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी यूनिट जो है वो एसआई में नहीं है। यू कैन सी द हाइट, ये सेंटीमीटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। एसआई में पहले चेंज करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गेट 0.735 मीटर है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में है, अब हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो रो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज हाउ मच? 100,999 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.735। ऑलराइट, सो दिस इज द कैलकुलेशन यू नीड टू डू। यहां पर आप एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। जब हम ऊपर वाला जो नंबर है इसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है? तो देखिए 3999 आपको यहाँ दिख रहा है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राउंड ऑफ दीज वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 101 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, क्योंकि देखो जैसे ही आपने इसको राउंड अप किया तो ये कितना हो जाएगा? 101,000। तो इन 000 को 10 की पावर 3 लिख दिया, 101 ये वाला 100 की जगह 101 हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर 0.7 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 7.35,
ठीक है, तो इट इज लाइक 7.35। ऑलराइट, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, यू कैन सी आउट 101 और 7.35, ठीक है, 7.35 यू कैन सी आउट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक 1.3 समथिंग कुछ आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, तो 1.38 समथिंग कुछ वैल्यू होगा एंड इट वुड बी लाइक 3, ठीक है, 13.8 शुड बी क्योंकि देखो 7 है, ठीक है, अगर हम 7 को देखते हैं 7.35 तो इट शुड बी लाइक 13.8। So it would be 13.8 समथिंग इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, और हम रो देख रहे हैं तो इट वुड बी kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो यहां पे और देख सकते हैं आप 13.8, और हम लोग ऑप्शंस में देखें तो देखिए 136 kg तो नहीं होगा, ठीक है, 272 kg भी नहीं होगा, 13,700 एंड 27,200, सो इट वुड बी इक्वल टू लाइक दिस, इसी के आसपास है 13.8 इंटू 10 की पावर 3, राइट। सो दैट इज वाई वी कैन से कि हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट बिकॉज इट इज लिटिल बिट क्लोज टू द वैल्यू। हो सकता है आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, सो यू ऑलवेज लुक फॉर द ऑप्शन विच इज क्लोज टू योर आंसर, ठीक है, तो उसके तरीके से आप भी करेक्ट उस पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार राउंड ऑफ का वैल्यूज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो यू नीड टू नोट डाउन दिस आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव अप टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, ठीक है, और ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्पेशल फ्लास्क फिल्ड विद वाटर। सो दिस इज अ फ्लास्क, ठीक है, ये एक फनल शेप का है, देन इट इज लाइक एक और फ्लास्क है जो राउंड शेप का है, ठीक है, फिर एक कॉलम शेप का फ्लास्क है एंड इट इज कनेक्टेड। ये तीनों के तीनों नीचे बेस से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन बता रहा है पॉइंट P हैज अ हायर प्रेशर देन पॉइंट Q। सो देखिए P Q आर 3 पॉइंट्स विच इज एट अ सेम लेवल, ठीक है, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल के हैं। पहला आपको ऑप्शन बोल रहा है कि पॉइंट P हैज अ हायर प्रेशर देन पॉइंट Q, ये आपको बोला गया है। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं पॉइंट R हैज अ हायर प्रेशर देन पॉइंट Q। सी पॉइंट बोल रहे हैं पॉइंट Q हैज द हाईएस्ट प्रेशर एज कंपेयर टू पॉइंट P एंड R। पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R हैव द सेम प्रेशर। सो देखिए मैंने आपको जब लिक्विड की प्रॉपर्टीज बताई थी, लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज बताई थी, सो आई टोल्ड यू व्हेनेवर देयर इज द सेम लिक्विड, ऑलराइट, तो यहां पर आप देखो तीनों के तीनों फ्लास्क जो हैं वो जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स जो लिक्विड इनके अंदर फिल किया गया है वो सेम लिक्विड है, राइट, क्योंकि इन तीनों का देखो सेम लेवल पे है, एक तो पॉइंट्स भी और लिक्विड का सरफेस भी, ठीक है, साथ ही ये तीनों कनेक्टेड है और तीनों में सेम लिक्विड फिल्ड है। दैट इज व्हाई इफ यू हैव द सेम लिक्विड देन एट द सेम डेप्थ कितना होगा प्रेशर, वुड बी सेम, राइट। सो ये चीज आपको जो है इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, दैट the pressure at the point at same depth of same liquid is same,
अगर लिक्विड सेम है और डेप्थ सेम है पॉइंट्स की, तो उन सभी पॉइंट्स पर इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। दैट इज वाई पी क्यू आर, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं और सेम ही लिक्विड फिल है, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू से दैट कि पी क्यू एंड आर उन सभी पे सेम प्रेशर होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नोट दीज डाउन. All right, now let's move on to the question number 4. Question number 4 अब आपके सामने है, ठीक है, and let's take a look at that. A rectangular tank of 6 meter long, 2 meter broad and 2 meter deep is full of water. What is the thrust acting on the bottom of the tank? तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है that there is a tank. All right, so let's make a photo of the tank. ठीक है, अब ये जो टैंक है वो है 6 मीटर लॉन्ग, ऑलराइट, एंड इट इज 2 मीटर ब्रॉड एंड इट इज 2 मीटर डीप, ठीक है। तो ये एक क्यूबॉइड शेप का टैंक हमारे सामने आता है, हमें इसके सारे के सारे डायमेंशंस पता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऑलराइट। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता चल गया कि वो वाटर से फुल है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस बॉटम पे कितना थ्रस्ट एक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज थ्रस्ट. थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, राइट। तो इसका मतलब बॉटम के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वाटर। तो इस वाटर जो कि इस क्यूबॉइड के अंदर फिल्ड है, जो इस टैंक के अंदर फिल्ड है, वो पानी अगर इस बेस पे जो प्रेशर लगाएगा वही थ्रस्ट होगा, राइट, एग्जैक्टली वही होगा। तो थ्रस्ट इज एक्चुअली व्हाट, द नॉर्मल फोर्स। अब आप ये बताइए जो नॉर्मल फोर्स है वो पानी कैसे लगाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट, राइट। पानी अपने वेट की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, पानी अपने वेट की वजह से ही इकलौता थ्रस्ट लगा सकता है एट द बेस ऑफ द टैंक। तो इस जगह पर जब ये पानी नीचे की तरफ जा रहा है की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली उसका वेट उसके ऊपर वहां है। सो बेसिकली ये जो थ्रस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इट वुड बी जस्ट द वेट ऑफ द वाटर, है ना। अब हमें वेट कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग थ्रस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हमें चाहिए वेट ऑफ वाटर ऑन द बेस। तो अगर हम सिर्फ वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, इट वुड बी ऑल। लेकिन वेट के लिए हमें क्या चाहिए, मास इनटू ग्रेविटी। मास चाहिए किसका, वाटर का। कितना मास होगा इसमें ये हमें चाहिए, डेफिनेट सी बात है, लेकिन यहां पर हमें मास की वैल्यू गिवन नहीं है। इस वजह से हम लोग यहां पे उन चीजों को यूज करेंगे जो हमें पता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या चीज पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये बात हमें पहले से पता थी, राइट। अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स आई नीड वॉल्यूम एंड आई नीड डेंसिटी, राइट। यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं मास किसका, वाटर का। दैट इज वाई मुझे वाटर की डेंसिटी और वाटर का वॉल्यूम चाहिए। वाटर की डेंसिटी तो फिर भी हमें वैल्यू पता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, बट वॉल्यूम हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह बात पता है कि वाटर इस क्यूबॉइड टैंक के अंदर फिल है, तो मतलब डेफिनेटली जो वॉल्यूम इस टैंक का होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है। तो दैट मीन्स उतना ही वाटर इसके अंदर फिल्ड होगा। अगर हम इस क्यूबॉइड टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द वाटर का वॉल्यूम, राइट। सो बेसिकली टैंक का वॉल्यूम वुड बी द वाटर का वॉल्यूम हियर। दैट इज व्हाई इस
मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड जी, राइट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड जी, ठीक है। तो डेंसिटी यहां पर कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम, बिकॉज इट इज टोटली इक्वल टू दी वाटर का वॉल्यूम। तो देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन नहीं की है, तो दैट मीन्स हम कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं 9.8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 9.8 वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं दैट वुड बी 24 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। सो इट वुड बी 23.52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, दैट इज थ्रस्ट, दैट मीन्स इट इज फोर्स, लाइक, तो उसका यूनिट जो होगा दैट वुड बी द यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि थ्रस्ट और फोर्स का यूनिट सेम होता है, सो इट इज न्यूटन। तो देखो 24 इंटू 9.8 यू आर गोइंग टू गेट 23.52, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो एक शिफ्ट हम वहां कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू गेट 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन यहां पर। और देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर हमें कभी भी ऐसा स्टिक हो जाते हैं, कोई ऐसा गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते थे, तो लुक आउट फॉर दैट थिंग जो आपको पहले से पता है। अगर आपको वो चीजें पहले से पता रहती, कुछ भी फैक्ट या कुछ भी फॉर्मूला आपको पता रहता, देन यू कैन कम अप टू दैट। यहाँ पर जैसे हमें मास चाहिए था बट हमें मास नहीं पता, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम पता है विच इज टोटली फिल्ड विद वाटर, तो जो भी इस रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम उसके अंदर फिल्ड होगा। सो वी कैन टेक दैट वॉल्यूम एंड द डेंसिटी वी ऑलरेडी नो, सो वी कैन कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी थिंग्स वी नीड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ ट्रिक्स, राइट। सो नोट दिस डाउन। Now let's move on to the question number 5. Question number 5 कहता है when a body is immersed in a liquid, जब एक बॉडी को हम लोग पानी में डुबो देते हैं, what is the loss in its weight equal to? तो देखिए अगर हम नॉर्मली किसी बॉडी का वेट एयर में कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द वेट इन इट्स वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो लॉस होता है वेट का, एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट जो लॉस हो गया है वेट का, that is actually what we have learned in the Archimedes principle, also in the Buoyant force, right? तो जो Buoyant force होता है that is equal to the loss in weight, right? क्योंकि जितना अपथ्रस्ट वाटर बॉडी उस बॉडी को फ्लोट करने में लगा रही है, that is totally equal to what? To the loss in the weight of the body, right? तो यहाँ पे देखो when a body is immersed in a liquid, what is the loss in its weight equal to? उसका जो weight loss हुआ है वो किसके equal है? So we have known it by the Buoyant force that is equal to the upthrust. Upthrust means Buoyant force क्योंकि upward direction में लगता है, that is why, right? So देखिए weight of the liquid के बराबर होता है? No. Weight of the body के बराबर होता है? No, because body का तो weight कम हो गया, right? It is not the weight of the body. The difference in the weight of the body in air and in liquid, the upthrust of the liquid on the body. So देखो जो loss in weight हुआ है इसका reason ही क्या हुआ है कि another force, that is the Buoyant force, is acting on the body in the upward direction.
opposing to the weight of the body, right? So that is why there is loss in weight, क्योंकि एक अलग opposite direction में force लग रहा है. That is why the body has some loss in its weight, will experience it, right? Naturally नहीं होता है, मतलब exactly नहीं होता है, but it will like apparent weight, ऐसा लगेगा, ठीक है? So we can say the upthrust of the liquid on the body is actually the loss in weight. So basically अगर किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर डेफिनेटली बायोवेंट फोर्स ऊपर लगेगा, राइट? तो इसका जो एक्चुअल वेट होगा वो अब कम हो जाएगा बिकॉज देयर इज एन अपोजिंग फोर्स हियर, जो कि इसको किस तरीके से कम करने की एक तरीके से रिजल्टेंट फोर्स हमें कम मिल रहा होगा, जिसका वेट ऊपर से लगता है, राइट? एंड बायोवेंट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, राइट? दैट इज द मेन थिंग. तो इसका जो एक्चुअल वेट होता है वो कम हो जाता है, कम ऐसा apparent weight हमें मिलता है, that is less than the actual weight. Reason is there is the buoyant force which is going to compete with it, right? And that is why the upthrust of the liquid on the body is equal to the loss in weight experienced by the body when it is immersed inside the liquid, right? That is why we can see that option D is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम v इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, ठीक है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉडी इज करेक्ट. तो देखिए यहां पर अब क्या हो रहा है, एक बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है? तो दैट मीन्स वो कहीं यहां होगी जो फ्लोट कर रही है, राइट? लाइक इट इज इन दिस सिचुएशन राइट नाउ. तो देखिए हमें बताना है कि ये जो लिक्विड है जिसका डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी का डेंसिटी रो है एंड वॉल्यूम v है, ठीक है? ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन गिवन किया हुआ है. सो द स्टेटमेंट्स आर इट्स ट्रू वेट इज v सिग्मा g, ठीक है? ये आपको बोला गया है. लॉस इन इट्स वेट इज v सिग्मा g, ये बोला गया है. Its apparent weight is 0. Its density rho is greater than that of the liquid. तो देखो डेंसिटी जो है वो इससे ग्रेटर है नहीं है, हमें ये बात नहीं पता, राइट? ये बात हमें नहीं पता बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन, बताया नहीं है ना इनका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है. तो वी आर नॉट एबल टू कंपेयर दैम, और ये नहीं कह सकते कि बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है या लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, राइट? यहाँ पर हम लोग ये सिचुएशन देख रहे हैं दैट इट इज फ्लोटिंग, ऑलराइट? तो यहाँ पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें बताना है बॉडी के लिए कि हम लोग बोल सकते हैं बॉडी का ट्रू वेट v सिग्मा g. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता बिकॉज वी डोंट नो द डेंसिटी. यहां पर देखो ये जो डेंसिटी है ये सिग्मा है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों कंबाइन करके जो है वो मास नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है? देयर हैज टू बी रो हियर, यहाँ पे रो होना चाहिए था. अगर ये रो यानी कि बॉडी का डेंसिटी अगर यहां पर होता तो v रो, तो दैट विल गोइंग टू गिव यू द मास एंड देन इट विल बी लाइक द वेट. तो इसका ट्रू वेट वुड बी दैट, तब वो करेक्ट हो जाता. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है? अब देखते हैं लॉस इन इट्स वेट इज v सिग्मा g. तो देखो यहां पर हमें लॉस बताना है. लॉस जब हम बता रहे होते हैं, लॉस इन वेट कितना होगा? बायोवेंट फोर्स के बराबर. बायोवेंट फोर्स का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि जितनी बॉडी, मतलब जितना वॉल्यूम बॉडी का इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, उतना वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड देन g. तो यहां पर देखो, यहां पर जो v मल्टीप्लाई किया गया है दैट इज द फुल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट? तो यहां पर ये फुल वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे हम लोग, उस वॉल्यूम की बात करते हैं जब हम बायोवेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो उस वॉल्यूम की बात करते हैं जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है या फिर किसी लिक्विड के अंदर है, इमर्स्ड है, राइट? तो दिस v शुड नॉट बी हियर, यहां पर होना चाहिए था वो वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है. एंड दैट इज व्हाई दिस वॉल्यूम and the density of the water or the liquid and g. So this is not the loss in weight.
यहाँ पर v की जगह अगर इमर्स्ड वेट लिखा होता, इमर्स्ड वॉल्यूम लिखा होता तो ये करेक्ट होता, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अभी देखो, इट्स अपेरेंट वेट इज 0, सो इट इज इट ट्रू? लॉ ऑफ फ्लोटेशन के दौरान हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब कभी भी कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही होती है, ठीक है, जब कभी भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है? वो एक्सपीरियंस करती है वेटलेसनेस। व्हाई? बिकॉज जितना भी उसका वेट होता है वो सारा का सारा बायोवेंट फोर्स के बराबर हो जाता है। ऑलराइट, सो फ्लोटिंग का कंडीशन यही होता है कि बॉडी का जो वेट है वो बायोवेंट फोर्स के इक्वल हो जाता है, दैट इज व्हाई बॉडी फ्लोट्स। एंड अगर अभी राइट नाउ जब ये इस तरीके से फ्लोट कर रही है, उस वक्त अगर मैं इसका टोटल वेट देखने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये दोनों तो इक्वल हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई द टोटल वेट, द नेट वेट शुड बी 0, राइट? तो दिस इज द कंडीशन, द फ्लोटिंग इज द कंडीशन in which a body will experience weightlessness. So we can say that its apparent weight is 0. This is correct. Its density rho is greater than that of the sigma. अगर इसका density ज़्यादा होता तो ये तो सिंक कर जाता, डेफिनेट सी बात है ना। अगर कोई चीज़ ज़्यादा डेंसिटी की होती दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की होती और वो जा सकती थी पानी के अंदर, क्योंकि पानी की डेंसिटी तो कम है, सो इट विल लाइक सिंक. But this is not the condition. The body is floating. It is given in the question, and that is why this statement is also incorrect. Okay? So that is why we can say option C is the correct one for this question here. All right, now let's move on to the question number 7. Question number 7 कहता है which of the following is not a factor on which pressure at a point inside a liquid depends. तो we are talking about the pressure, ठीक है, somewhat here. इस P पॉइंट पर जो कि लिक्विड के अंदर है, हम लोग देखना चाहते हैं इस पे प्रेशर, और इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, वो चीज हमें बतानी है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन बता रहा है द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब देखो, द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड लाइक दिस, ये हाइट, ठीक है। तो मतलब जितना डेप्थ पर है ये पॉइंट P इनसाइड द लिक्विड सरफेस, दैट इस हाइट पर ये जो प्रेशर है क्या ये डिपेंड करता है? यस, बिकॉज हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दैट? रो जी एच। तो ये एच क्या होता है? एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट, राइट। तो इस P के ऊपर जितने हाइट का लिक्विड है उतना पे तो डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है। ज्यादा डेप्थ अगर ये पॉइंट नीचे जाता जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ती जाएगी, लिक्विड सरफेस से पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, राइट, दैट इज व्हाई। तो इस पे तो डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द लिक्विड, उस पर भी डिपेंड करेगा, डेफिनेट सी बात है। ज्यादा डेंसिटी वाला अगर लिक्विड होगा तो इट विल बी लाइक मोर प्रेशर, सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, रो जी एच, तो जी पे तो डिपेंड करता ही करता है। सो वी हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स। द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, फोर्थ ऑप्शन जो है, शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। कैसा भी शेप हो, आइदर फनल शेप हो और स्फेरिकल शेप हो और सिंपल सिलेंड्रिकल शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, क्या? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, right, density of the liquid and acceleration due to gravity, and that would be all if you want to calculate the density or नहीं, calculate the pressure of at a point inside the liquid.
तो बेसिकली ये तीनों चीजें हमें चाहिए होती हैं, एंड इस शेप पर जो प्रेशर है वो डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, कैसा भी शेप हो द प्रेशर वुड बी द सेम ओवर देयर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर। All right, now let's move on to the question number 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो है ये बताता है, if a body floats with the p by qth of its volume above the surface of the water, find the relative density of the body। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, relative density of the body। अब ये देखिए, सबसे पहले तो सिचुएशन को हम डायग्रामेटिकली बता देते हैं। सो दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पर है एक बॉडी जो इस तरीके से फ्लोट कर रही है कि ये वाला जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम पानी के नीचे है वो हमें गिवन नहीं है, जो वॉल्यूम पानी के ऊपर है वो कितना है, टोटल वॉल्यूम का p बाई क्यू, यानी कि लेट्स से लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी let the volume of body is how much, v। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज v। अब इस v का p बाय क्यूथ पार्ट पानी के बाहर है, तो ये वाला पार्ट कितना है, p बाय क्यू v, राइट। तो पानी के नीचे वाला जो पार्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम अगर निकाल देते तो हमें ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि इमर्स्ड है, राइट। अब हमें बताना है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी हेयर, हमें रिलेटिव डेंसिटी बताना है। तो हमें ये बात पहले से पता है कि जो वेट बॉडी का पानी के अंदर है उतना ही वेट का पानी वहां से डिस्प्लेस हुआ होगा, डेफिनेट सी बात है। ये जितनी बॉडी पानी के अंदर है तो इतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर और द वेट ऑफ द वाटर वो डिस्प्लेस हुआ है, वो दोनों इक्वल होते हैं, डेफिनेट सी बात है, बाय यूजिंग द बायो एंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी यानी कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, और फिर देन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बिकॉज वेट यानी कि मास इनटू ग्रेविटी, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, यहाँ पे हम अभी बॉडी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वी बी मैं लिख रही हूं दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड, जो कि पानी के अंदर है, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम वी बी जो कि इमर्स्ड है पानी के अंदर है वो वाला वॉल्यूम, तो आई एम गोइंग टू राइट एज वी बी, ठीक है, ये वी बी है, और है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसके बराबर होगा, जितना पानी, जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड इट्स वेट जितना डिस्प्लेस करेंगे वो इसके बराबर होगा। तो यहां पर ये किसके बराबर होगा, लिक्विड का डेंसिटी, तो दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एंड देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और ये जो वॉल्यूम है दैट वुड बी सेम, ठीक है, सेम हो जाएगा ये दोनों के दोनों वॉल्यूम, एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये देखो यहां पर अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और इस वीबी का वैल्यू कैलकुलेट कर देके रख देते हैं। वीबी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस p बाय क्यू वी, ठीक है, और g से g तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो रो ऑफ वाटर एंड v हियर, ठीक है। तो इस यहाँ पे v नहीं आना चाहिए, राइट, v यहाँ पे आना चाहिए, ऑलराइट। तो देखिए हम लोग यहाँ से v कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो बाहर भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या पता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला देखेंगे दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर,
ठीक है, तो अगर ये डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता चल जाता है, तो आई कैन कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो को नीचे लेकर आएंगे। सो रो बी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू इज गोइंग टू बी लाइक, यहां से v कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो यहां से 1 माइनस पी बाय क्यू शुड बी इक्वल टू 1 हियर, राइट, क्योंकि v से v कैंसिल एंड यू गोइंग टू गेट 1 माइनस पी बाय क्यू, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस डेंसिटी, राइट। अब हम इन पूरे टर्म को उधर लेकर चल जाएंगे। सो रो बी डिवाइडेड बाय रो W इज इक्वल्स टू, इट वुड बी, इन इसका पूरे का टर्म का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो Q टर्म नीचे आएगा, यहां पर Q ऊपर आ जाता है, ठीक है, एंड इट वुड बी Q माइनस P, ठीक है। सो दिस वुड बी द टर्म जो कि हमें डेफिनेटली चाहिए होगा, ऑलराइट। सो हम लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक है, इसे आप फटाफट से नोट कर लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमें मेन बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है दैट वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी द अपथ्रस्ट, राइट, बिकॉज यहाँ पे फ्लोट कर रही है बॉडी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी के लिए हमने एक हल्की सी मिस्टेक की है यहाँ पे। व्हाट इज दैट, वो ये कि हमें जो बॉडी का वॉल्यूम इमर्स्ड लिया है दैट इज नॉट एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी शुड बी द टोटल वेट जो कि एयर में होता है, और उसको ही हमने पूरे तरीके से अपथ्रस्ट से इक्वलाइज कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर जब हम वाटर का वॉल्यूम ले रहे हैं जो कि इक्वल होना चाहिए इमर्स्ड बॉडी के लिए, दैट वुड बी हियर, तो हमने इंटरचेंज कर दिया है दोनों की वॉल्यूम्स को, एंड दिस इज द ओनली मिस्टेक वी हैव डन हियर, राइट। तो इट शुड बी द वेट ऑफ द बॉडी हियर, alright, that should be the weight of the body. So density of the body, weight, volume of the body is going to give you with multiplying it by the g, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, weight of the body। और यहाँ पर जो अपथ्रस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर के थ्रू, अब जो अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल किसके होता है, जितनी बॉडी पानी में इमर्स्ड होती है, राइट। तो यहाँ पर आना चाहिए VB है, राइट। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, जो बॉडी का जो वॉल्यूम है जो इमर्स्ड है, दैट शुड बी द अपथ्रस्ट, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम जितना इनसाइड है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेट ऑफ द बॉडी एंड द अपथ्रस्ट, जो कि दोनों बराबर है बिकॉज द बॉडी इज फ्लोटिंग, राइट। तो इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो इंटरचेंजिंग किया है वो हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का वॉल्यूम, तो G यहाँ पे हो जाएगा फिनिश, यहाँ पे बचेगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय VB, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, एंड दैट इज टोटल वॉल्यूम माइनस P बाय QV, ये वाला जो पानी के बाहर है, टोटल वॉल्यूम में से ये वाला बाहर वाला वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इमर्स्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। So we are going to get like P by Q V here. V हम लोग बाहर ले लेंगे तो it would cancel out.
ठीक है, तो यहाँ पर रो बी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो डब्ल्यू 1 माइनस पी बाय क्यू वी। ठीक है, v से v कैंसिल आउट एंड देन हम लोग लिख सकते हैं रो बी डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू ठीक है, और फिर हमें मिलेगा 1 माइनस पी बाय क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रो बी divided by rho w, this is the density of the body divided by the density of water is going to give you the relative density। तो यही हमारा क्या बनेगा, रिलेटिव डेंसिटी बनेगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी बाय क्यू इज द रिलेटिव डेंसिटी। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। ठीक है, तो इसे अब आप करेक्टली नोट कर लीजिए, दिस इज द करेक्ट थिंग व्हाट वी हैव डन हियर नाउ। Alright, now we are going to end our lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.